ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऐसे मेहमान जो पहले भी आ चुके हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बोला कि यार इनको फिर से बुलाएं, तो हमने कहा कि इनको बुला लें। यू नो, फाइनली वी आर एबल टू एक्सप्लोर the thought behind दस्तगीर, जो कि हमने बहुत रूडली मिस कर दी थी लास्ट टाइम, और आप लोगों ने मुझे इसका जो है ना बोला भी। इनफैक्ट आई डिड अ मीटअप इन कराची एक्चुअली, एंड दे वर लाइक कि दस्तगीर को आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया सर? गुस्सा हो गए वो लोग। Good, thank you to whoever did that. बट सैफ अली इज विद अस टुडे। सर थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप फिर से हमारे अरे सर, हम्बल स्टूडियो में आए। sir, of course, thank you for having me again. It was a pleasure last time. Ready for round 2. चलें, ज़बरदस्त। I'm not gonna waste any time and I'm gonna go Sure. straight into Dastagir. Just to recap, what is Dastagir? Dastagir is a B2B e-commerce company. हम जो हैं छोटे किरियाने रिटेलर्स के लिए ज़िंदगी आसान कर रहे हैं। जो उनको पहले स्टॉक ख़रीदने में दिक्कत होती थी, we're trying to eradicate that problem completely by providing them a marketplace of goods that they can order from, get next day delivery. There's a bunch of discounts and other added features as well. But the core thing is we want to fix the fragmented supply chain because बहुत सारे small to medium-sized retailers in Pakistan, by our estimation, it's about 2 million, that are underserved, essentially ignored by the traditional supply chain. जो distributors हैं या जो manufacturers हैं, उनकी reach में नहीं आते. So we're stepping in to fix that problem. Right. And as of now, we've also launched a lending product so that retailers can have a buy now, pay later option and be able to purchase that basket of goods today and pay it back over a 2-week period of time or a 4-week period of time. Right. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि राइट नाउ अगर मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को मैक्रो पे लेकर जाऊँ, we're seeing a lot of these news pieces, right? कि Dastagir got funded and fintech Finja got funded and so on and so forth. What's going on in Pakistan right now? This is a watershed moment. So this is something I love talking about because it's so exciting. It's so exciting to be a part of it. And I think anyone, for all the observers as well, ये पाकिस्तान के लिए बहुत major चीज़ है. ये हमारी economy के लिए बहुत major चीज़ है, right? Like if you look at our FDI, it's around $1.2 billion, right? And right now, this year, in September alone, we've raised about $250 million in VC funding. That's 25% of your FDI, right? Already met by month number 9. And the reason why this is happening, so this is an inflection point for sure, but there's been a lot of like groundwork that was already laid there, over the last few years. So Careem was a major win for the entire region, right? Careem, because one of the founders was also Pakistani, he was very bullish on having tech headquartered here, and then Pakistan also became one of their biggest markets eventually. So that really helped global investors and regional investors take the market seriously, right? And then so many other players that have been around for a long time, before us, like Finja, like Zameen, who achieved amazing growth, amazing traction, and amazing valuations to go with that. So right now there's this like perfect storm, but in the good way, right? That SBP is there making good strides, right? Regulator cheezein theek kar raha hai. The climate is right कि अब हालात बेहतर हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है, stability है, economic stability है, huge young population, right? Most of our people are under the age of 30. The digital growth is insane, right? 4G broadband internet picking up, so everything is ripe to be digitized, right? Commerce and finance and education and health and et cetera. That's why this is all happening right now. Right. And so we've been hearing about this for the past few years, particularly in the past 5 to 7 years. We had the NICs and the incubation centers, और हमारे पास जो है ना कंपनीज आ रही थी, 0 to 1 disrupt type conferences हो रही थी. हमें सुनने में आ रहा था कि startup, Uberization of everything over there. Democratize. I'm going to democratize media. I'm going to democratize news. I say that too. Don't make fun of us. And so, but वही वाली बात है कि उसका रिटर्न नज़र नहीं आ रहा था. इस साल नज़र फाइनली आना शुरू हुआ. जब आना शुरू हुआ है तो हमने देखा कि पर्टिकुलरली 2 एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट हो रही है. एक आपके पास ई कॉमर्स एंड रिटेल, सॉर्ट ऑफ डिजिटाइजिंग रिटेल, एंड एक आपके पास फिनटेक. जितनी भी आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी आप ले आए, लिटरली उसके ऊपर इस वक्त फंडिंग हो रही है. ऐसा ही मोस्ट रिसेंटली टैग, जिनकी अभी तक प्रोडक्ट भी नहीं आई. We have no idea what it's going to look like. It would potentially just be a graphic design template. I hope not. high hopes and high expectations. But that's pretty cool कि $12 million उनकी जो है वो वहाँ पर वैल्यूएशन और नहीं फंडिंग हुई है.
Funding हुई है. Funding हुई है. Yeah. So why these two particular industries and not ed tech, for example, or health tech, for example? Yeah, so I mean, it has a lot to do with what we've already seen happen in the region. So generally, when you look at any emerging market and emerging startup ecosystem, your founders and your new products and your new companies will come out of certain academies of entrepreneurship, as I like to call them, right? So Kareem was that academy of entrepreneurship for the region overall, right? And now in the Middle East and Pakistan, we have a Kareem mafia, right? Like there was a PayPal mafia once upon a time, right? And after that exit, जो शुरू के लोग थे, उनके पास ठीक ठाक पैसे आए जेब में, right? And they went out and set up their own thing. अच्छा मैं airlift करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, right? Our co-founder was also part of the early team at Kareem, and he also came out with a small little, nice nest egg, and that helps then propel further entrepreneurship. But also, it's what they did before that they can apply further, right? So they worked in Kareem or they worked in Airlift. They knew how to move people, so it's not that much of a stretch to then take that and say we're going to move goods, right? Or these people that have been working in financial services, there the opportunity is, it kind of, the case makes itself, right? The market size is so massive, right? And we've seen the growth that EasyPesa and JazzCash and these, traditional players have also had with very basic tech, right? And not the right user experience perhaps, and not the right, service offering perhaps. There's still a lot of gaps, right? So it's a sort of thing where the technologists are coming in and capitalizing on that opportunity with the skill set they already had. So yeah, there is a bias in the ecosystem. I think it'll definitely improve over time. Just a couple of days ago, there was another edtech that announced a funding round, and we're going to see more and more of this. But the time will come when, so Noon Academy, for example, when they eventually have their exit, there you'll have another, mafia, hopefully, with a diverse set of experience, right? So having done edtech, then they'll be able to perhaps create new edtech products or, related products. That's but generally... do you think it's generally because of the fact that there is, I mean, there's definitely the mafia effect globally होता है, जाहिर है कि जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी कनेक्टिविटी होती है, वो चीज़ बेहतर होती है, तो आपको रेज करना भी आसान हो जाता है, आपको पूरा सिस्टम पता है. बट उसी के साथ साथ अगर मैं ये दोनों के दोनों देखूँ, लाइक यू मेंशन फिनटेक, अगर जस्ट फिनटेक is a huge opportunity in a market that has less than 20% banked consumer. Yes. And so you're essentially saying कि भाई आप अभी तो ये तो बात ही नहीं है कि मैं पुराने कस्टमर को किस तरह इवॉल्व करूँ इनटू न्यू. मैं तो कह रहा हूँ कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कस्टमर से मैं एक्वायर ही करता रहूँ, तो मैं बस बैंकिंग नेट में ले आऊँ, एंड सो द होल माइक्रो फाइनेंस थिंग एंड वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली मेक्स अ गुड केस उस तरह से. सिमिलरली मैं अगर रिटेल को देखूँ, जो सॉर्ट ऑफ डिजिटाइजिंग रिटेल की मैं बात करूँ, तो वो just the scale of it, I feel like that makes its own case versus, let's say, EdTech or all of those. कि अगर वैल्यूएशन हो रही है $80 million, $90 million की, तो इस वजह से वो फंड रेजिंग हो रही है लिफ्ट की $90 million at a valuation of $275 million. $275 million, right? तो वो insane. Probably इस वजह से हो रही है बिकॉज आप देख रहे हो कि यार $100 billion की रिटेल मार्केट है, पूरी रिटेल मार्केट है. Yes. Precisely. And so उसका चंक अगर 100 यूनिकॉर्न्स भी आ जाएं तब भी वो पूरा नहीं होता. हाँ. So उस सेंस में I feel like it makes a lot of sense कि this will be the first that people will target, because in a country जहाँ पर कुछ भी डिजिटल नहीं है, सबसे पहले वो लो हैंगिंग फ्रूट्स लेंगे. Precisely. And generally business consumers जो हैं, they are more likely to shift because वो उसके जो वो है क्या कहते हैं उसे, वैल्यू प्रोपोजिशन बड़ी क्लियर होती है. Precisely. राइट कि आप पैसे बना सकते हो, ये वो आप आम कंज्यूमर को आप कंफर्ट ऑफर कर रहे होते हो, आप ये कर रहे हो, तो वो शायद उस पे yeah. And those are also like, those are impulse driven things, and whereas this is a very clear thing that this will help you improve your business. This will help you upscale your business. और आप इंडोनेशिया देखें, बांग्लादेश देखें, इंडिया भी देखें, तकरीबन ऐसे ही शुरू होता है, राइट? पहले वो फ्लिपकार्ट आता है और फिर वो टॉप पे जाता है और फिर फ्लिपकार्ट के 50 बंदे निकलते हैं, कोई कहता है अच्छा जी मैं अब ये एड-टेक में शुरू करूँगा या हेल्थ टेक में शुरू करूँगा. एंड that time will come, and you're right, the commerce opportunity is huge, right? Retail opportunity is huge. So and within that कि B2B का अलग एक segment है और B2C का अलग एक segment है, and you'll also see a lot of like different kinds of marketplaces. अभी US में आप जाएंगे, you'll find marketplaces for pets. Just pets, right? And it's become so specialized, right? Because now commerce is only done through those marketplaces, right? And then you'll find maybe an aggregator of just marketplaces, right? A search engine for just, जो यहाँ पे भी किसी ने शुरू किया था, I forgot the name. So
these kind of things will sprout up, and we are a nascent ecosystem. But the important thing to note is that this inflection point, this watershed moment, is very dramatic. मतलब ये stage जब इंडिया में आया था या बांग्लादेश में आया था, उनकी गर्व इतनी वो नहीं थी हॉकी स्टिक जितनी हमारी हो रही है. Right. So it, you know, hopefully spells something really positive for the country. इसमें ये वो बार बार cautious optimism यहाँ पर इस वजह से होता है कि जितनी स्पीड से राइज करता है उतना ही वो ब्लो अप भी कर सकता है, तो इट हैज टू बी वेरी सॉर्ट ऑफ क्लोजली फॉलोड. लेकिन ये वो चीज़ नहीं है कि ये बबल है या कुछ है, राइट? नहीं, बबल तो नहीं है. हाँ. बट उसमें नुकसान ये होता है ना कि while you have, बिकॉज इंडिया में जब आया था तो पीपल वर वेरी वेरी केयरफुल कि यार हम डेवलप्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं, इतनी बड़ी में जा रहे हैं, उसका साइज इतना बड़ा है, तो पैसा भी अच्छा खासा वाफर लगा था जी. तो बड़ा इंक्रीमेंटल था, बड़ा ऐसे शुरू हो रहा था. हमारा ये था कि देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग एंड नाउ देयर इज अ लॉट. एंड सो इन केस ऑफ ना बैक टू बैक फेलियर्स अगर हुए ना, तो सडनली पूरी जिंदगी के लिए ब्रांड हो जाएगा पाकिस्तान के, यार यहाँ पर तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है. ये टाइम नहीं है कि यार दस्तगीर या एयरलिफ्ट या ये लोग सक्सेसफुल डिलीवर करें. ये टाइम है जिसमें पूरी की पूरी इकोसिस्टम नीड्स टू डिलीवर, द गवर्नमेंट नीड्स टू डिलीवर ऑन द रेगुलेशंस. बिल्कुल. व्हाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज लुकिंग एट पाकिस्तान, दे आर नॉट लुकिंग एट दीस पर्टिकुलर कंपनीज. ऐसा ही है. They are looking at Pakistan and how these early stage startups end up becoming successful businesses and get their exits and make their investors money. जो आने वाले वक्तों का बड़ा पैसा है, जो बड़ी हम सुनने में आता है इंडिया में कि यार गूगल आया और उन्होंने कहा जी $2 बिलियन हम इन्वेस्ट कर देंगे, वो यार जी लास्ट जो इंडिया में हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज ट्रस्ट डेवलप हो चुका हुआ था मार्केट के अंदर. एंड सो पाकिस्तान में बिकॉज वो बहुत स्पीड में आ रहा है, टैलेंट की भी कमी हो रही है, हर बंदा कह रहा है कि अच्छा जी मुझे टैलेंट चाहिए बिकॉज आई नीड टू स्केल बिकॉज द मनी इज कमिंग इन. सो इट इज समथिंग जिसके ऊपर बड़ा केयरफुली हमें ट्रेड करना पड़ेगा रादर देन जस्ट सॉर्ट ऑफ हार्पिंग ऑन दिस सॉर्ट ऑफ यू नो horn of के बस जी अब तो कमाल हो, क्योंकि the thing is I've done that as well, right? And now there is so much happening and now I've just taken a step back and I've been like okay fine, like we're good, good things are happening, we don't have to celebrate. just हमें ये नहीं करना क्योंकि हमें वो शौक होता है ना कि गोरी की वैलिडेशन मिलती है या वो होता है कि यार finally so I feel like yes we've made it, but now we have to, now is the tough time starts. Now is the tough time and you're so right because अब जो मेहनत करनी है वो ये है कि हमें अब इकोसिस्टम को बनाना है, राइट? अभी ठीक है हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, बहुत बेहतरीन टीम्स बनी हुई हैं, फंडिंग बिल्कुल सही आ गई है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक रियली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वड इन द मार्केट नाउ, राइट? मतलब आप कुछ इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया है लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में भी नहीं किया है, राइट? एंड मच बिगर एज इजिप्ट इज अ मोर डेवलप्ड मार्केट, KSA यू कैन से इज अ मोर डेवलप्ड स्टार्टअप मार्केट. तो पाकिस्तान में वो सीन है, लेकिन जो सारी लीवर्स हैं ऑल ऑफ देम नाउ हैव टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ कि अच्छा SBP जो पिछले कुछ साल से कर रहा है अब उसको और गेम को अपस्किल करना पड़ेगा अगले 2 साल में, राइट? फिर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको और अपस्किल करना पड़ेगा. लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा यू नो व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले? भाई MOC शुड बी द वन के आप दस्तगीर हैं या आप दराज हैं, मैं आपके अमेजोन से बात करवाता हूँ, राइट? We'll go approach at a diplomatic level, right, and try and broker that deal, make that arbitrage happen, right? और it needs to play an active part जब आप देख रहे हैं कि इतना हम डॉलर लेके आ रहे हैं, राइट? इतनी जॉब क्रिएशन है. The thing is कि जो बाहर का बंदा आएगा ना वो पहला सवाल ये करेगा कि यार आपकी तो गवर्नमेंट अनस्टेबल है. जब तक गवर्नमेंट एज अ स्टेक होल्डर साथ नहीं आएगी क्योंकि सर हम गारंटी दे रहे हैं कि आप आओ इस मार्केट के अंदर, यही होगा. और दुनिया में होता है यू नो अगर आप US वगैरह में जाएं तो स्टेट्स जो हैं वो बिड कर रही होती हैं कि टेस्ला का अकेला वो किधर खोलेगा. और ये वो हो रहा था टिकटॉक की बात याद नहीं है कि ट्रम्प कह रहा है कि नहीं इसको नहीं बिकेगा उसको बिकेगा, बिकॉज गवर्नमेंट प्लेज दैट पार्ट एंड कैरीज दैट इन्फ्लुएंस, राइट? दैट दिस इज अ मैसिव डील, राइट? यू टॉकिंग अबाउट $50 billion acquisition, so we're going to tell you how to do this in the right way, and we can potentially bridge that gap as well and bring you the right investors and the right players on board, which we're very far from right now. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये टैलेंट की आपने बात की, टैलेंट का बहुत अच्छा सीन है पाकिस्तान में, बहुत बेहतर हो सकता है, right? And as an ecosystem, universities and companies and corporates, we need to again do a lot more to upskill the talent, especially for tech, right? As engineers, we have such amazing engineering talent, which is a huge edge, by the way, in Pakistan. Huge edge potentially over Bangladesh, potentially over Egypt, जहाँ पे ये level का नहीं है, you know? However, brain drain is a problem, right? जितना भी वो बच्चा बंदा हो और उसको अच्छी जॉब मिल जाए, अब वो फंडेड स्टार्टअप में आ गया, उसको अबव मार्केट सैलरी मिल रही है, बेहतरीन बेनिफिट्स मिल रहा है, कल्चर मिल रहा है, बट ही डजंट वांट टू लिव हियर, right? How do we fight that? Right? And again, this is something government needs to tackle, right? कि अच्छा of course हम उस पूरे मुल्क का living standard नहीं बेहतर कर सकते, there's systemic problems, but build this narrative, right? कि जो वापस्तानी वाला सीन हो रहा है, why has the government not capitalized on this and ran a whole campaign कि भाई वापस आओ, टेक बनाओ, जॉब्स बनाओ, पैसे कमाओ. तानिया दुरुस्त हो गया था ना, unfortunately. That was the problem with that was कि बनाने की कोशिश की थी, फिर वो that one thing
destroyed that so much. Yeah, you're right. Particularly expat communities के अंदर के nobody, my entire family was like they were devastated कि Yeah. यार ये you know if this is what's going to happen to someone जो कि अपना पूरा career छोड़कर आ रहा है जी तो nobody's going to take that risk. But then I spoke to the STZA team and they're doing some groundbreaking work. they are. You know, I feel like this is not a job of politicians particularly. This is a job for technocrats ऐसा ही है. जिनको वो understanding है. And so with STZA what they've done is they've created an authority which is autonomous essentially, that is disconnected from all of the bureaucratic hurdles. It Yeah. just directly reports to the Prime Minister. Yeah. And within that authority, the chairman and the CIOs and all of these people, they've brought in, you know, sort of technocrats from all over the world. और उनको लाके उन्होंने बिठाया. तो वो that's something that I find very, very promising. Yeah. You know, in the coming years. एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हम ऊपरी देखते हैं, हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हम बिजनेसेस को देखते हैं, तो जाहिर है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल लोग देखते हैं, कहते हैं यार ठीक है अगर आप लोग हैं तो आप लोग जो है ना वो माल बेच रहे हैं इन अ स्पेस जहाँ पर मार्जिनस की गेम है. एक रुपए के ऊपर लोग बिक रहे हैं. ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरा, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, वो वहाँ से उठाता है, वो कहता है यार वो आपको 3 रुपए पे दे रहा है एक्स्ट्रा पे, तो मैं आपको ना 2.5 रुपए एक्स्ट्रा पे और बंदा बिकता है उसके ऊपर. हो सकता है, बिल्कुल. एंड सो लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा हूँ जस्ट बाय द सेल्स, आई डोंट सी दैट एज ए वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्योरली ऑन अ नंबर स्टैंड पॉइंट. दैट्स माय ओपिनियन. नहीं है. ठीक है. what I do see alternatively, और particularly मैं फिनटेक का देखूँ और मैं ई कॉमर्स रिटेल का देखूँ, वो मैं ये देखता हूँ कि हमारे बैंक्स एक जगह पे फेल हुए हैं. हमारे बैंक इस जगह फेल हुए हैं कि उन्होंने उनको डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको पैसा हैंडल करना था. ठीक है. दुनिया भर में बैंक ने अपने अपग्रेड किया, बैंक ने नहीं किया तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ गई. पाकिस्तान में तो आई बिलीव देयर इज ओनली वन एजेंसी दैट डील्स विद एवरीबॉडीज क्रेडिट स्कोर्स. क्रेडिट ब्यूरो है. क्रेडिट ब्यूरो है. एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट, जिसके अंदर कुछ भी एसेंशियली कनेक्टेड नहीं है. बिल्कुल. एंड सो आई फील लाइक कि व्हाइल वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, the underlying product that everybody is trying to build is a credit score ऐसा ही है. that will allow you to be able to understand the consumer and through that consumer be able to really eventually offer products that are going to make you money. ऐसा ही है. Not what do you think about that? ऐसा ही है. So that's ultimately the same value chain that we are building right now, right? So we have the e-commerce solution in place where we have a marketplace of goods and the retailer orders those goods and we deliver them. We take care of last mile, we take care of the sorting center and all of that. But ultimately, the real game is data. Right? As we get data of that retailer's wallet share, of his seasonal trends, of his buying behavior, et cetera, we take that data, we hand it over to our fintech partners because, as I said, we've already launched our credit offering, right? And that fintech partner then takes that data, runs it in his algo. His algo says, okay, Muzammil General Store gets a credit score of 76, therefore he's approved. We'll give him a limit of 50,000 to start with, right? Then immediately we start offering Muzammil General Store that buy now, pay later feature, right? And then the lending is where we make our money, right? There's a rev share there where we make our money, and that's ultimately the game, right? And then how do we build on this? How do we get even more data? Let's find out how much he spends, how much his entire working capital is, right? Let's find out how much stock he has in his store at a given time entirely. That's where that pause thing will come in and all that, right? And it's exactly the same that is happening in B2C as well, right? What Airlift is doing, what these people are doing. Now you're going to be able to track down wallet share and all these like minute little data points for retailers, for consumers, and then that data is going to get monetized with financial services, right? Not just lending, but lending is the game. And especially when you talk about like SMEs, SME enablement will add about $10 billion to Pakistan's GDP. 10 billion with a B, right? And lending with the right data is going to be the biggest lever in that. So this is a huge thing for Pakistan. Right. इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ ना, क्योंकि ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान में हमें समझ नहीं आता. हम कहते हैं कि यार हमारे जो वो है मेंटालिटी है वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चलती है कि पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ो और घर बनाओ आखिर. राइट. और फिर बच्चे जो हैं वो उस घर के साथ फिगर आउट करेंगे. मसला ये होता है कि बाय दैट टाइम यू डाई एंड देन द एसेट्स एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू गेट अ स्मॉल चंक एंड देन यू स्टार्ट टू सेव अप and the cycle goes on. The reason why we are unable to build a house and then be able to spend, like बात वही है कि आपने घर है, आखिर में आना है या पहले आना है,
इररिस्पेक्टिव आपने पैसे तो उतने ही देने, उतने ही देने, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, जब आपने पैसे उतने ही देने हैं तो व्हाई शुड यू लिव इन अ शिटी environment for 30 years before you have the money to live comfortably, but then by that time it's too late. Exactly. एक तो ये बात, ये थॉट दिमाग में रखें। दूसरा ये थॉट है कि पाकिस्तान में हम एक यूथ बल्ज की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यार बहुत बड़ी नौजवानों की वो है पॉपुलेशन जी, एंड नौजवानों की पॉपुलेशन में इट्स अ चिकन एंड एग। सो आइदर यू हैव अ ग्रेट इकोनॉमी and you provide them opportunities, and through those opportunities they're able to buy products and grow the economy. Yeah, you make them work hard and build the economy. बिल्कुल। अच्छा, जब दूसरा, पहला तो कर नहीं सकते, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। दूसरा जो कर सकते हैं उसके अंदर हाउ डू यू ट्रस्ट देम दैट दे विल एंड अप बिल्डिंग अ गुड इकोनॉमी। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अलाउ देम टू हैव थिंग्स if you have the trust that these people will not fail. You're right. टेक्निकली तो ये तो जवाब आप दे नहीं सकते, किसको पता है, खुदा ही जानता है। लेकिन देन ग्लोबली ये हो रहा है कि जो लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो वो है वो ये है कि हर इंसान जो है ना वो प्रॉबेबली रिटर्न ना करे, थुक लगाए। बहुत सारे लोग थुक लगाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे, जो कि लॉ अबाइडिंग होंगे, जिनका फ्यूचर जो है वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि यार ये बंदा कर लेगा, ये अच्छी नौकरी करेगा, ये पैसे कमाएगा, ये बिजनेस करेगा, ये पैसे कमाएगा, और वो पैसे कमा के हमें रिटर्न कर देगा। एंड सो फॉर एन इकोनॉमी दैट इज बिल्डिंग 10 houses when the requirement is 100 houses, they cannot, when they don't have that wealth, until and unless they build those 100 houses and say कि यार okay, we promise you we're going to pay you back over the next few years. बिल्कुल, आप वो 100 houses पे नहीं जा सकते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये फिगर आउट करना है कि जो 100 घर आपने, क्योंकि जब आप बात करते हो कि यार ठीक है अब मैं आपको 100 घर बनाने के लिए दे दूंगा, हर बंदा पहुंच जाएगा, बैंक पहुंच जाएगा कि यार मुझे नया वो मेरा घर, मेरा लोन स्कीम आ गई, हर बंदा पहुंच जाएगा कि जी मुझे पैसे दो और मैं जी घर खरीदूँ फॉरन से पेशतर, मिल रहा है मुफ्त का, क्या है, ऐसा ही, विदाउट थिंकिंग कि यार मैं इसको पे बैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एंड सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व राइट नाउ इज कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप घर, जो 100 में से जो 1000 की डिमांड है उसमें से वो कौन से ऐसे 100 लोग हैं who are most likely to pay back. And so whoever is able to build that product that can begin to identify these variables, will eventually start to help accelerate the economy at an exponential rate. इसमें बहुत होशियार लोग काम कर रहे हैं. I think people far smarter than you and I. Amazing, like machine learning and AI science is being applied to this to try and figure out. So even the people that we work with, right? These guys are scientists, right? And they take that data and they crunch it, you know, in their algorithms. और वो हमें exactly बता देते हैं कि, you know, एक मतलब बंदे की rating is, you know, between 1 to 100, right? तो आपकी 67 है, मेरी 68 हो सकती है, right? Because of one small data point जो मेरा ज़्यादा है, आपका नहीं है, right? और मतलब अभी मैं आपको बता सकता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल कि हम कर चुके हैं, हम शुरू कर चुके हैं ये लैंडिंग वाला काम, और हमारे लिए नया है, राइट? हम कुछ महीने से पायलट करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें लॉन्च किया है। पायलट में भी जो हमारे पास डेटा है, लाइक मैं आपको बता सकता हूँ कि आवर डिफॉल्ट रेशियो इज़ अबाउट द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री एट 0.5%, राइट? तो जिस रिटेलर को हम क्रेडिट स्कोर, जो भी हमारा तरीका है, हम इट सीम्स टू बी वर्किंग. Right? It seems to be working. They're using that money as it's meant to be used. Right? हम ये भी देख रहे हैं कि उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी डबल हो रहा है, और यही तो चाहिए था ना कि हमारी ये हाइपोथेसिस थी कि if we give them buy now pay later, they'll be able to spend more. They'll be able to work more comfortably, right? Run their business more easily. And that's exactly what's happening, right? उनकी रिटेंशन भी बढ़ रही है कि वो बंदा जो यूज़र हमारा एवरेज में अगर 2 हफ्ते में भाग जाता था, ये बंदा 2 महीने से हमारे साथ है, क्योंकि उसको ये फीचर मिल रहा है, राइट? सो credit is going to be basically the secret ingredient to unlocking Pakistan's economy. And right now credit is very difficult to come by. आप और मैं भी कल को क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, सर नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस रहा है? उफ इतना बुरा हाल है, राइट? बुरा हाल, बेसिक बैंकिंग का बुरा हाल, पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। भाई तुम मुझसे क्यों डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो फालतू की, जो बाय द वे मैं 2 मिनट में हैक करके लाके दे सकता हूँ जी। ठीक है कि कंपनी की एक लेटर हेड ये लाके दें और वो लाके दें और ये बिल लाके दें और वो बिल लाके दें, इतना रूडिमेंट्री है, और फिर फ्रॉड होता है उसमें, फिर वो रोते हैं। मतलब आपके पास जब पूरी दुनिया के तरह जा चुकी है, इतना डेटा अवेलेबल है, सारा कुछ है, व्हाई डोंट यू यूज दैट? प्रिसाइसली। एंड जो काम का बंदा है वो उस बेचारे सिस्टम से बाहर
फेंके जा रहे हैं और जो हैक कर रहा है क्योंकि आपके स्टूपिड से डेटा पॉइंट्स हैं वो उसको हैक करके वो पहुंचा हुआ है और फिर वो फ्रॉड कर रहा है। ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि अब ठीक है हमारा क्रेडिट स्कोरिंग का सिस्टम नहीं है तो इनका तरीका एक ये भी शायद एक हद तक सही है कि बस कुछ भी करके इनको क्रेडिट के नेट में ले आओ। तो ये कामयाब जमान वगैरह जो चल रहा है उसका भी यही पॉइंट है ना कि बस लोन्स डिसबर्स तो करो, राइट। बट वो तो गवर्नमेंट का देखिए, आई डू एग्री विद दैट, ठीक है वो एक बट दैट्स लाइक टीका है वो एक टीका है, अभी लगा लिया आपने, थोड़ा से चल जाएगा। लॉन्ग टर्म तो नहीं, लॉन्ग टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा कि मैं आज बैठ के सोच रहा हूँ यार जल्दी से ये गवर्नमेंट आई हुई है, चलो जल्दी से किसी घर का लोन अप्लाई कर दो जी। अच्छा वो घर का लोन मैंने लास्ट टाइम देखा भी 10 मिलियन का लोन था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है। उसको मैंने 20 साल की टेन्योर देखा तो मुझे तकरीबन पड़ा था 77,000 रुपीज़ पर मंथ का। ओके मैंने कहा 70,000 का तो बंदा रेंट दे देता है, 77,000 में आपको एक घर मिल जाएगा, कितना अच्छा है। पूरे इस्लामाबाद में देख लिया कोई 1 करोड़ रुपया घर ही नहीं मिल रहा। आप जाके ले ये है बबल और ये एक अलग इसका एक अलग मसला है। तो तो अब जाहिर लाइक देखिए, अब कंज्यूमर कह रहा है यार अजीब पागल आदमी हम भाई आप मार्केट में मिल रहे हैं यार। देखिए मैं भी तो कस्टमर हूँ ना, मेरी भी एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करें आप, वो पूरी कब तक होगी? मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट गरीब तबके के लिए कर रही है, ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, बट मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर करेगा और मेरे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक प्राइवेट सेक्टर आएगा और आके मेरा डेटा लेगा। मैं उसको कहूँगा भाई निकालो सारे डिजिटल पे पड़ा हुआ है और मुझे अच्छे सस्ते करते दो ताकि मैं बिल्कुल एक अच्छा घर बना सकूँ। So एक तो I think that's very very powerful. Most people don't realize the power of credit. They don't realize the power. हमारे यहाँ वो अभी तक जो है ना वो especially young people, young entrepreneurs, they're looking at the cosmetic. When they're looking at businesses, they're looking at a website that buys and sells stuff. जी, और ये सस्ता है और ये सस्ता है. So they're figuring out the pricing and all of those things accordingly. They're not thinking of the bigger picture. ऐसा ही है. एंड देन दूसरी चीज़ जो पर्टिकुलरली मुझे जो स्टार्ट में बात बोली कि डेटा एज अ प्रोडक्ट, नॉट सेइंग कि डेटा को आप उठा के आप जाके थ्रो कर दो इधर उधर लोगों को बेच दो जाकर। डेटा को आप अपने पास रखते हुए भी अपने ही प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करें, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड बेहतर करें और इनसाइट भी आप बेच सकते हैं। यू डोंट हैव टू सेल डेटा, यू कैन सेल इनसाइट। सो फॉर एग्जांपल you guys can eventually go and say कि भाई Unilever, listen, why don't you come and invest in your trade marketing on these regions, because हमारा ये बताता है कि ये जो you're most likely to be able to क्या हो गया यार, आपने मेरा फिर से बिजनेस प्लान तो नहीं पढ़ लिया है यार मुज़म्मिल भाई? यार आप पूरी पब्लिक के सामने आप मेरी बातें आउट कर देते हैं यार। But that makes the most sense because that's the game. That's the game for everybody. अभी जो हम कर रहे हैं, हम पूरे रिटेल सेक्टर को मैप कर रहे हैं ना कि अच्छा नाज़माबाद एक इलाका है कराची के अंदर और उसमें 50 रिटेलर हैं और वो 50 रिटेलर इस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उस तरीके से आप गुलशन में जाएंगे तो वो 50 रिटेलर का फ़र्क बिहेवियर है। और वो फ़र्क क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बाइंग बिहेवियर ये है, यहाँ ये पर आप बोनस बेचें, वहाँ पर आप सर्फ एक्सेल बेचें, क्या कर रहे हैं? जी, that's the game. जो वॉलमार्ट में एसेंशियली यूएस वगैरह में होता था कि जी आपका एक आप इधर डबल रोटी रखो लेकिन उधर अंडे रखना वहाँ and you want them to go through the store and go through the store, जाते हुए आप एक चिंगम रख दो $1 भी मिल जाएगा। हाँ, वो भी है ना, उसको क्या कहते हैं, वॉलेट ओपनर्स, वो जो वहाँ पड़े हुए होते हैं, जो हेलो मैगजीन पड़ी होती है। और एब्सोल्युटली। सो वो वो वाली इनसाइट अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट्स में आई ही नहीं थी, जिसके ऊपर आप लोगों को जाके और वो वाली इनसाइट अगर मैं उसको ज़्यादा उस तरह से बता सकूँ कि SMEs को जो सही एम्पावर किया था ना ई-कॉमर्स में, वो शॉपिफाई ने किया था। बिल्कुल, जब वो जाते थे और आपको बताते थे कि योर स्टोर इज परफॉर्मिंग एट 70% compared to all of the rest of the stores. Why don't you do this? Because your store is more likely to perform better if you do this particular precisely thing. And so not only the buy now pay later, but just as a service, you can go into these करियाने की दुकानें and you can tell them, listen sir, आपकी ने मैंने नोटिस किया आप ये प्रोडक्ट्स नहीं रख रहे हैं, ये आजकल मार्केट में बाजारें बड़ी बिक रही हैं और आपके रीजन में तो खास बिक रही हैं, आप जरा साथ ये भी थोड़ी सी ऑर्डर कर लो, एंड देन ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वो हो जाती हैं। सो यू बिगिन टू प्ले अ सपोर्टिंग रोल, वो एक बिग ब्रदर रोल टू दिस SMEs, कि वो जो है ना जाकर आप, क्योंकि उनका बिजनेस जब ग्रो करेगा उसी के हिसाब से उनकी एक तो आपका क्या है रिटर्न करने की काबिलियत बढ़ेगी और दूसरा फिर क्रेडिट्स का वॉल्यूम बढ़कर ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपकी वो ऐसा ही। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये, तो अब ये जो B2B का स्पेस है, तो दस्तगीर एक्चुअली वाहिद वो कंपनी है B2B की स्पेस में जो ट्रू मार्केट प्लेस बना रही है। और ट्रू मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ सेलर्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं
और कस्टमर है और उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं, एंड ऑप्शंस आर ऑलवेज बेटर, राइट? तो अगर आपको ऑलपर का कार्टन भी खरीदना है तो आपको 5 सेलर्स हैं जो मिलके वो बेच रहे हैं। एंड द रीज़न वाई, तो दैट्स वाई वी आर द ओनली कंपनी राइट नाउ जो मैन्युफैक्चरर के साथ भी काम करती है, यानी कि डायरेक्ट टपाल से या किसी से हम माल ले रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम करते हैं और हम होल सेलर के साथ भी काम करते हैं। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन है उसी में हम खेल रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस बनाने के लिए हमें हर बंदे से सामान चाहिए, राइट? तो जो डेटा वाली बात है, वही डेटा के साथ हम कस्टमर को भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और साथ साथ सप्लायर्स को भी देना है कि जी आप होल सेलर हैं और आप जिस लेवल पे जिस क्वांटिटी में काम करते हैं उसके हिसाब से आप जरा ये ट्राई करें, ठीक है? दूसरी चीज़ जो लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो गोना बी टू वे नेचुरली, राइट? कि ठीक है जी, आप शफीक साहब हैं, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप हमारे साथ टाइम से काम कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री बन गई है, तो हम आपको लेंडिंग करवा के देते हैं, राइट? बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव। आपकी डेटा, आपकी क्रेडिट स्कोरिंग हम करवाते हैं और हम जाते हैं बैंक्स के पास प्राइवेटली, राइट? प्राइवेट बैंक्स के पास, और हम उनको कहते हैं कि भाई शफीक डिजर्व्स अ क्रेडिट लाइन ऑफ अप टू 4 million एज वर्किंग कैपिटल बिकॉज ही नीड्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, जो कि उसके लिए खुद करना अजाब है। वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन ले आए, जो कुछ कर ले। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने अपना फिनटेक का कंपोनेंट ऐड नहीं किया हुआ? आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकल रहा क्रेडिट में? हमारी अपनी लोन बुक नहीं है फिलहाल। वी आर नॉट एन NBFC. And you're not even looking to apply for a license for that? Well, maybe, who knows in the future, but not right now. ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और मुझे ये बताएं कि अभी पिछले दिनों एक ट्रकिंग कंपनी है जिसको पाकिस्तान में फंडिंग मिली, Truckit-in. Yeah. कोई आइडिया आपको वो क्या कर रहे हैं? They're all doing the same thing. तो ई-कॉमर्स में जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ रही है, उसी वजह से लॉजिस्टिक्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ रही है। बाय द वे, जो आप फंडिंग की पहले बात कर रहे थे, इफ यू कंपेयर द सेक्टर्स, इट विल बी ई-कॉमर्स, फिनटेक एंड देन लॉजिस्टिक्स, राइट? तो Truckit-in बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज़ लॉजिस्टिक्स वाज द फर्स्ट मूवर था। जी। बट वो आहिस्ता लोगों को रियलाइजेशन हुई कि नहीं, अच्छा हमने आगे पीछे थोड़ा सा ठीक करना है, तो लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ, वो तो आपकी बात मैं समझ गया। लॉजिस्टिक्स के अंदर मैं उनकी प्रोडक्ट समझना चाह रहा हूँ। Okay, yeah. Truckit-in क्या है? वो कीप ट्रकिंग स्टाइल है? नहीं, कीप ट्रकिंग तो इट्स अ टेक प्ले, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। Truckit-in और ये बाकी जो हैं, ये मार्केट प्लेसेस हैं, सो देर कॉल्ड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मार्केट प्लेसेस, राइट? और थर्ड पार्टी फ्रेट मार्केट प्लेसेस। मकसद ये है कि पाकिस्तान में खासतौर पे ये लॉजिस्टिक्स सिस्टम है, ये भी फ्रैगमेंटेड है कि एक ट्रांसपोर्टर है, उसकी 20 गाड़ियाँ हैं, राइट? और बिल्टी है और अलग अलग सीन है, बड़ा एक वो भी मुश्किल डायनामिक है। तो एक एग्रीगेटर आ गया है जो कहता है सर आप बिलफर्ज आप दस्तगीर हैं, आपको रोज़ के बेसिस पे 500 ट्रक्स चाहिए, मैं आपको ला के देता हूँ और मेरा काम है सोर्स करना। और क्योंकि वो भी हमारी तरह मल्टीपल जगहों से सोर्स कर रहा है, बेस्ट रेट्स, बेस्ट ऑप्शंस, राइट? जो आपको चाहिए, आपको सुजुकी चाहिए, शेजोर चाहिए, उस तरीके से होता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली डिजिटल फर्स्ट, कम्प्लीटली टेक इनेबल्ड। अब हम अगर टेक कंपनी है, हमने उसी के साथ काम करना है जो टेक इनेबल्ड है, राइट? अभी जब हम मार्केट प्लेस मॉडल पे आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं, हमने सप्लायर्स को भी सेलर ऐप इस्तेमाल करने में फोर्स करना है। किस तरह आप हमें कॉल नहीं कर सकते, कोई सीन ही नहीं है, आपको माल मूव करना है, आप ऐप इस्तेमाल करें। द सेम वे वी डू विद द रिटेलर, कि आप भी हमें कॉल करके ऑर्डर नहीं भेज सकते, राइट? तो दैट्स व्हाट दे डू एज वेल। सो दे हैव अ टेक इनेबल्ड प्ले, वी कैन इंटीग्रेट देयर APIs इनटू आवर सिस्टम एंड हैव रियल टाइम विजिबिलिटी कि Truckit-in से जो हमारी डील है, अभी हमारे पास 50 ट्रक्स अवेलेबल हैं, 50 ऑन द रोड हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। अच्छा, एक इसमें सवाल ही आता है, आपने बोला कि हम टेक एनेबलमेंट हमने करनी है। देखिए, मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान में एक तो हमारे लोगों को टेक यूज़ करनी नहीं आती, दूसरा जो है वो कहते हैं कि यार क्या खप है, अब पापा भी इस तरह करते थे, दादाजी भी इस तरह करते थे, खासकर यानी की दुकान वाला। उसको आप कैसे, क्या मतलब what's the thought? How do you get him to eventually come to a POS, for example? हाँ, ये बड़ा नाजुक मामला है। तो अभी देखिए, हम जो कर रहे हैं, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज, राइट? वी आर गोइंग इन एंड वी गिव हिम दिस पिच दैट दस्तगीरी के ये फ़वाइद हैं, आपको अगले दिन डिलीवरी मिलेगी, आपको पूरी मार्केट प्लेस मिल रही है, 1-2 महीना आप हिस्ट्री बना लें, आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए, राइट? इसके बावजूद कहता है कि नहीं भाई, सीन नहीं है, right? And we have to do like live demos, right? So that's why this is the only step in the value chain where we have boots on the ground, right? There's a human being visiting that store and explaining the proposition and showing it to him in real life, right? Because बहुत सारे cases में उस दुकानदार ने स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हाँ, मतलब वो अच्छा, so मैं कहता हूँ उसके पास है ही नहीं, तो क्या आप ये भी होता है? नहीं, हम प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, राइट? लेकिन हम उसको वैल्यू दिखा सकते हैं कि अगर आप खरीदते हैं और आप इस पे आते हैं, स्मार्टफोन्स तो हैं,
पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है अर्बन सेंटर्स में। फिलहाल हम कराची लाहौर में काम कर रहे हैं, इतना बैड सीन नहीं कि फ़ोन्स होते नहीं ठीक है, है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि उन्होंने अगर उनका मैक्सिमम यूसेज जो है टिकटॉक से यूट्यूब से आगे नहीं गया है, राइट, और फ़ोन और टेक्सटिंग व्हाट्सएप वगैरह, तो इस किस्म का ऐप उन्होंने कभी इस्तेमाल शायद किया ही नहीं है। जैसे हमारे लिए तो अब ई कॉमर्स ऐप इज सेकंड नेचर, राइट, बल्कि हम तो जज कर रहे होते हैं कि यार ये कितना स्लो है, यार इसका डिज़ाइन कितना बेकार है, यू नो, वी यूज्ड टू इट। तो उनके लिए इट्स अ कंप्लीटली न्यू थिंग, राइट। और बिहेवियरल चेंज लाना इंसेंटिव वाली बात होती है ना, उसको हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई आपको ये मुनाफा है, राइट, आपको मार्केट प्लेस मिल रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो फलां एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो नहीं आया, या ये एक चीज़ है जो शॉर्ट हो गई है, अब मुझे खुद उठ के होलसेल मार्केट जाना पड़ रहा है, राइट। तो इस तरीके से होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली मैजिकल, बिकॉज वो तबका जो है SME रिटेलर, अगेन दैट्स अ ह्यूज स्वाथ ऑफ द पॉपुलेशन, और हम कर रहे हैं और बाकी भी जो B2B प्लेयर्स कर रहे हैं उनकी जाके बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। we're making them ripe for other players to come and disrupt and other players to come and serve them। अब क्योंकि वो स्मार्टफोन सेवी हो गया है, वो कंफर्टेबल हो गया है, कल को उसको हेल्थ टेक वाला आके बेच सकता है, कल को उसको डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स वाला आके बेच सकता है, या एड टेक या जो भी, right? So it's really easy to bring them into that because now they're already used to technology। वो थोड़ा सा एक जो skepticism था और एक शक था, एक trust deficit होता है पाकिस्तान में हर नई चीज़ के साथ, वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है। राइट। अभी आपके कितने हैं, how many people do you have on board? 40,000 plus 40,000 active users? active। Really? Yeah। And that's like 40,000 का मतलब ये कि करियाने की दुकान है, या कोई दुकान है एक? दुकान है तो किरियाना हम करते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज रिटेल, उसमें दूध वाले भी हैं, पान वाले भी हैं, छोटा किरियाना, बड़ा किरियाना, उनको हमने अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। मॉडर्न ट्रेड नहीं आता। तो मॉडर्न ट्रेड से मुराद डी वॉटसन, राइट, जो AC वाली दुकान है। बड़ी दुकानें आ गई ना। जनरल स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका एक तो किराने की दुकान हो गई, बिल्कुल ही ओपन दुकान होती है, एक होता है इसमें दरवाजा लगा होता है, AC वैसी कोई नहीं होता। परचून की दुकान, हाँ, परचून की दुकान, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होते हैं, राइट। या तो वो भी अब इसके अंदर आ गए। एंड राइट नाउ अगर मैं इको सिस्टम की बात करूँ, इस तरह फिनटेक की तो आजकल आ रही है, एक बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड आ रही है, 150 प्लेयर्स हैं। रिटेल ई कॉमर्स, मैं रिटेल ई कॉमर्स वैसे कह रहा हूँ बिकॉज डायरेक्टली मैं लेकर आना चाह रहा हूँ ब्रिक एंड मोर्टार की तरफ। हाँ, मैं ई कॉमर्स पे नहीं ले जाना चाह रहा। ठीक है। तो रिटेल ई कॉमर्स के अंदर कितने प्लेयर्स हैं इस टाइम के ऊपर? यू मीन B2C and B2B, राइट? Airlift is not, I'm not considering that as a competition for you. No, it's not. They come after us in the value chain, right? Because वो भी अगर हम चाहें तो हम भी एयरलिफ्ट को बेच सकते हैं और वो आगे कंज्यूमर को बेच सकते हैं, राइट? सो मैं देख रहा हूँ कि B2B जो डायरेक्टली, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो ये है कि यार आप बजाय इसके कि आप कहो कि यार देखें 22 करोड़ में से हम तो 10-12 करोड़ को रीच कर सकते हैं, हाँ। और उसके अंदर वो इतना बड़ा प्रॉब्लम टू सॉल्व है कि आप किसी को भी नहीं रीच कर पाएँ। वेयर एज फॉर यू गाइज आपके पास एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, और उस सेगमेंट के देन वेरिएबल्स भी स्पेसिफिक हैं, सो एज यू लर्न यू आर एबल टू अप्लाई दैट टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन, ऐसे ही सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड पैंडा डिड। ऐसे ही मैं जो बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, पिछले दिनों आई एक्चुअली दैट दिस पर्टिकुलर थिंग आई वाज इन कराची, सो माय कजन इज इन ये फाइनेंशियल सेक्टर से मुंसलिक है, बैंक में होते थे पहले, राइट। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि यार ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये निज़ाम नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कहा कि यार वो लेजिटिमेट बात थी। उन्होंने कहा कि यार देखें वो बैंकिंग की साइड से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यार नहीं, लोगों का नहीं माइंडसेट बदलता, लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते। मैंने उनको काउंटर के ऊपर फूड पैंडा के एग्जाम्पल दिया। अच्छा, फूड पैंडा की एग्जाम्पल किस तरह से काम आती है कि वहाँ पर उन्होंने जाके रेस्टोरेंट्स को टैबलेट्स दी जी, और छोटी मशीनें दी जी, और उन्होंने पर्पस बिल्ट अपनी वो सॉर्ट ऑफ मशीनें और POS और वो बना दी फूड पैंडा के लिए अपना। हाँ, ऐसा ही, ठीक है। अच्छा चलें, 1P2P तो कर सकता था। हाँ, उसकी तो ट्रेनिंग ऐसी हुई भी है कि उनके अपने POS बड़े यूनिक किस्म के होते हैं, वो कर लेते हैं। बट भाई मैं यहाँ पे वी ईट दिस रोल पराठा कॉल्ड तैमूरी रोल पराठा, शाउट आउट टू देम इफ एनीबॉडी फ्रॉम इस्लामाबाद नोज देम, 99 से चल रहा है बना 2 में पाकिस्तान। जिस दिन तैमूरी रोल पराठा है ना फूड पैंडा पे, मैंने कहा भाई यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुकी हुई है, बहुत नेक्स्ट लेवल। अच्छा, तबाही होगी, क्योंकि वो एक सादा सी दुकान है, वो बॉयज़ हैं, वो अपने गाँव से यहाँ पर आए, उन्होंने कर दिया, पूरे खानदान को यहाँ पे बुला लिया, बट वो बॉयज़ हैं। हाँ, वो एक बड़ी सी उसको वो जो होती है लोहे की, नहीं वो चपाती बनाने वाली, उसको बना के पराठे बनाते हैं। दूसरा जो है वो जी उधर वो कर रहा होता है, बना के बेच रहे हैं। उसके लिए आपने इतना आसान कर दिया हुआ है
कि उसको कुछ ज़्यादा बटन दबाए बगैर एक टच स्क्रीन टैबलेट आ गई, उसके ऊपर उसको येस और नो का वो इंटरफेस आ गया, उसके ऊपर इंटरफेस के साथ उसको जो है ना वो पता लग गया 1 दिन है 2 दिन है 3 दिन है कौन सा वाला देना है, और लेकर उसने जो है ना करके सामने राइडर खड़ा हुआ है, उसने राइडर को प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल उसके लिए कुछ चेंज नहीं आया. सो इफ दिस देन दैट वाली बात है कि अगर वो पॉसिबल है तो देन ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. ट्रू. कंज्यूमर को बेचना एक इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. Yeah, it's a different challenge. इट्स अ डिफरेंट चैलेंज. बट इसके अंदर एक जो उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमारे यहाँ देयर इज अ ह्यूज ग्रे इकोनॉमी, राइट. और ग्रे इकोनॉमी की वजह ये है प्राइमरीली कि हमें वो बिगर पिक्चर नहीं नज़र आती कि यार निज़ाम का हिस्सा, स्ट्रक्चर का हिस्सा बन के हम कलेक्टिवली क्या कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. सो हम कहेंगे कि हम अपना निज़ाम चलाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारी रोड ख़राब है, हम कहेंगे कि ये है, तो हम उस तरह की वो करते रहेंगे. अ लॉट ऑफ व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग इज देयर बिकॉज देयर इज टेक. टेक मीन्स कि आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, टेक मीन्स के लेजर मेंटेन्ड है, एंड सो आप निज़ाम के अंदर आ रहे हैं. आई नो कि इन इट्स इवेंचुअलिटी ये एक इनएविटेबिलिटी है. हाँ, ऐसा ही. बट कंज्यूमर अभी इस तरह से नहीं सोचेगा फर्स्ट वेव के अंदर. कंज्यूमर सोचेगा कि यार ये हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि मेरे नंबर कितना घूम रहा है, तो जी यही मसला है, so on and so forth. How does one tackle that? यार ये बड़ा नाजुक प्रॉब्लम है और ये हम एक हद तक B2B में भी फेस करते हैं, राइट. लेकिन रियलिटी ये है कि अब जो है एवरीबडी हैज़ टू प्ले द गेम, राइट. अब वैसे ही इतना मुश्किल हो गया, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप घर नहीं ले सकते, आप नॉन फाइलर हैं, आपके 100 मसले, राइट. सो अगेन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मेक्स इट ईजियर फॉर अस कि हमें वो बैड गाय नहीं बनना पड़ रहा कि वो वैसे ही आपको पुश आ रहा है, और ये पुश ज़रूरी है, राइट. ये जो अभी हम क्रंच महसूस कर रहे हैं ये ज़रूरी है फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट. तो वो तो है, एंड आई थिंक इट्स नॉट रियली गोना बी अ बिग प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन, बिकॉज व्हाट्स गोना हैपन इज कन्वीनियंस विल विन out. Right, so that's what Airlift is relying on, right? That quick commerce, the whole concept, 30-minute delivery, 20-minute delivery, it will win out because of कि आपको ये चीज़, मतलब आपको शऊर ही नहीं था कि ये पॉसिबल भी है, राइट. हमने आपके लिए एक बिल्कुल ही नई चीज़ आपके लिए रियलिटी में हम लेके आ गए, राइट. आई डू थिंक द मॉडल इज़ अ बिट क्वेश्चनबल, right? I do think the unit economics are a bit questionable. Worldwide, what you see in quick commerce is mainly it's being subsidized using venture dollars. Right? आप खुद इसको sustainable business कैसे बनाते हैं? That's the challenge. Right. लेकिन जो हमें सुनने में आता है positive unit economics पे वो काम कर रहे हैं, तो ये wave आएगी. कैसे कर रहे हैं यार? ये नहीं पता मुझे. ये आपको ऊबर वाले अगर पैसा बर्न कर रहे हैं ना, मैं मानता हूँ क्यों बर्न कर रहे हैं. वो कह रहे हैं उनका एक गोल है, उनका है कि यार सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी क्या है? ड्राइवर. हाँ, एक टाइम आएगा सेल्फ ड्राइविंग करके ड्राइवर निकाल देंगे. सेल्फ ड्राइविंग से भी गेम बहुत आगे. मैं आपको एक आर्टिकल भेजता हूँ, हम एंजॉय करेंगे. सेल्फ ड्राइविंग वो सब नाटक था, ठीक है. ऊबर का दे बर्न मनी बिकॉज ऑफ द मून शॉट्स. दे बर्न मनी बिकॉज ऑफ ईगो फ्यूल्ड बैटल्स एंड मार्केट्स वेयर दे वर नेवर गोइंग टू विन, लाइक इंडिया एंड चाइना. तो वो तो अलग ही कहानी है, राइट. करीम है, करीम राइड हेलिंग इज प्रॉफिटेबल, right? Okay. Right? Is it though? Yes, because prices have been jacked, right? Supply side benefits have been reduced, right? Prices have been jacked. और by the way, अब आपको लास्ट कभी प्रोमो कोड आया था करीम से? नहीं. कब, कितना टाइम हो गया? हाँ, बड़ा ऐसा हो गया वाकई. That's why. Right, so do you think Foodpanda is profitable as well? I don't know. Because ये मैं बड़ा देख रहा हूँ कि Foodpanda कब तक चले, कब तक ये इस तरह के बिजनेसेस चल सकते हैं. Because 30 रुपये डिलीवरी है यार, it's too enticing, but it's not. Yeah, तो मेरे भी घर पे मजाक होता है कि Foodpanda वालों का मेला लगता है, क्योंकि मैं नाश्ता करता हूँ, एक जगह से कॉफ़ी आती है, एक जगह से डोनट आता है, ठीक है. Sir, it's और crazy. वो 3 राइडर खड़े होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं है, राइट. आई नो दैट अभी डिलीवरी हीरो ने बात की थी कि ग्लोबली उनकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन -3% पे आ गई है, तो मच बेटर देन दे वर बिफोर. I mean, right, and again, how long is this going to go on? But ये जो हो रहा है एक हद तक ग्लोबली भी, उबर और ये डिलीवरी हीरो ट्रेडिंग हो रही है. It's just there's no real value creation. बस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं by showing more transactions, by showing more orders, year on year, month on month, week on week, new verticals, new categories, new team, new tech. और जब वैल्यूएशन बढ़ती है, कोई और सकर कहता है कि यार मैं खरीद लेता हूँ, चलो अब मेरी बारी, ठीक है. तो रॉकेट ने बेचा डिलीवरी हीरो के साथ हुआ था, सच्ची बात है. वो तो बहुत ही फर्क. हाँ, बट मतलब उसमें भी मंजन तो वही था ना, आपने हम यूं कर लेंगे, वो एक दौड़ लग गई. तो वो तो एक बंदे का कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी, राइट. एडम न्यूमैन, वो बहुत इंसेन कहानी है, डॉक्यूमेंट्री देखना उसकी इफ यू हैवंट, बिकॉज दिस गाय वाज रियली बिलीविंग ही वाज गोना टेक ओवर द वर्ल्ड, राइट. मतलब अगली फंडिंग का ट्रांच आया नहीं है, वो कह रहा है कि एनी टाइम मुझे 50 और लोकेशंस अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए. ये जगह भरी नहीं है. अच्छा, वो उसके साथ यही हुआ ना अभी. किसके साथ? एवरग्रांट.
जो Evergrande? चाइना के साथ हुआ है. No idea. What is this? So there's a looming financial crisis coming 2008 जैसा. यार नहीं ये करो. लास्ट पूरा वीक टोटल ये आया है. और वो क्या है? हुआ ये कि लास्ट वीक फ्राइडे को आई बिलीव ये आया कि जो चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, हाँ. वो अच्छा, और उनकी दे एम्प्लॉय 200,000 पीपल एंड एवरी per annum I believe or every month they employ 200,000 people, right, and every month or every per annum they generate 2 million jobs in China indirectly. Wow. So that's the scale of their operations. Last Friday को they announced कि Monday को ये final बताएंगे कि whether they will be able to what's the word for it, वो अपने बेसिकली जो डेट ऑब्लिगेशन है वो पूरी कर सकते हैं नहीं कर right. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है. डेट ऑब्लिगेशंस कितनी है? $300 billion. यार ये रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, मजीद फाइनेंस हो जाएगा, कुछ नहीं होता. 300 billion dollars. Too big to fail. So basically जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा कि जी चाइनीज गवर्नमेंट इसको फेल करने नहीं देगी, बिकॉज अच्छा जो आपने अभी आई डोंट नो आपने फॉलो किया नहीं क्या, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरी है 3%, जो हांगकांग की मार्केट गिरी है. PSX तो खैर उसकी वो वजह से गिरी है, अपनी क्या नाम है, उन्होंने जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया. ओवरऑल ग्लोबली मार्केट्स जो है ना वो इस वीक बिल्कुल जो गिरी थी वो गिरी इस वजह से थी बिकॉज एवरग्रांड का स्कैंडल आया. ये अब अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो इसके पीछे जो लेंडर्स है ना वो इतना पैसा लगा चुके हैं कि दे डू नॉट, वो पीछे आगे नहीं कर सकते. एंड इट्स वही चीज़ जो यूएस में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था. एंड सो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो ये है ही है. और उनका ये है कि इनकी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, इनके वर्कर्स को पैसे नहीं गए हुए, वो कब से कर रहे हैं वो सारा का सारा. इट्स जस्ट इट्स हॉरिबल. बट लिपेटिंग बैक टू द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ, लाइक आई सेड, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, I've understood the e-commerce retail market, because वो मार्केट बेच ही कुछ और रही. एंड आई डू एग्री with Airlift and with a lot of these companies. आई डू एग्री कि मोस्ट लाइकली होगा ये कि वो भी और प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं अगर बिजनेस कंज्यूमर को मैप कर रहा हूँ तो वो कंज्यूमर को मैप, बिल्कुल ऐसा ही है. एंड दे हैव द सेम डेटा. वो कह रहे हैं कि यार इस लोकेशन में ये और इस लोकेशन में ये यही होगा. बट डज दैट जस्टिफाई अ सीड राउंड? कितना है उनका Series A round of $85 million, right? So look, the game is that quick commerce is a hot trend worldwide. ठीक है. And it's a hot trend. It's something that VCs are very much in love with. और हर emerging market में तकरीबन ये खुल रहा है. ठीक है. And again, the game is convenience, the game is data, and you use that data for, again, you partner with fintech and then you start offering new services and new verticals and things like that. Will it be sustainable? I don't know. And I think that there's a lot of eyes on Airlift because it is right now then the most funded startup in Pakistan. They're already expanding into South Africa. By the way, the team is in Johannesburg. They're hiring people. They're going to be launching cities there very soon. Right. So the funding essentially is not just for Pakistan. It's for international. Yeah, it's for the international play. And that's, वो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है ये स्टार्टअप्स की, टेक की, कि आपने अगर ट्रूली स्केलेबल मॉडल बनाया है, देन इट नीड्स टू बी प्लग एंड प्ले. राइट, कि आप उस मार्केट में जाएं जहाँ आपने पहले कभी काम नहीं किया है, आप लोकल टीम हायर करोगे जो वहाँ का रेगुलेशन, वहाँ की रिलेशनशिप्स कैसे बनती हैं वो नेविगेट करेंगी, लेकिन प्रोडक्ट आपका इतना सॉलिड है कि आपने बिठाया और चल गया. राइट, तो वहाँ पे ट्रैक्शन आएगी. दैट विल बी द रियल टेस्टामेंट if it works in South Africa as well. Right now, currently, there isn't a lot of competition in Q-commerce in South Africa, right? But I think it's very interesting. जो भी होगा, as consumers, it's brilliant for us. Definitely. कि PandaMart भी है, और Airlift भी है, right? और मजीद खुलते जा रहे हैं और मजीद पैसा आता रहेगा. सॉरी, यहाँ की बात काट रहा हूँ. She's here from the US, और कल ना उन्होंने कहा कि यार मुझे ना, उन्होंने फिर वो TRP की मैंने तस्करा किया. उन्होंने मुझे TRP खाना है, मुझे जमील का कुल्फा खाना है. ये दोनों बड़ी मशहूर चीज़ है. Okay, yeah. तो वो जो है ना, ड्राइवर को बोलो कि वो जाकर ले आए. ड्राइवर की क्या जरूरत है? हाँ, ज़माना चेंज हो गया. मैंने फूड पैंडा खोला, वो दो एक वक्त में किधर से आया किधर से आया, वो तो उनका तो माइंड ब्लो. अच्छा, उसके बाद से मैं कराची गया हुआ था. कराची आके मुझे अपने बेबी के लिए वाइप्स खत्म हो गए. हाँ, ठीक है. अब मुझे क्या पता कि यार यहाँ पर कौन सी दुकान में क्या कोई सीन नहीं है. मैंने मोबाइल निकाला, मैंने पैंडा मार्ट खोला. पैंडा मार्ट में 30 रुपए लेकर वो बंदा लिटरली 8 मिनट के अंदर वो मेरे पास पे उसकी कोई डार्क स्टोर जो होता है वो था, वो उन्होंने लिया, लाकर उन्होंने मुझे दे दिया. Sir, it's revolutionary. And it's revolutionary to a point where this sort of user experience is not available in the US even. No, I agree. Right? I agree. But again, it's subsidized by venture dollars. Yes. That's the game. That's the only... Right, that's the game. अभी वो जो बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं
कि ये पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स है। और जो मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत सारे लोग इसके लिए जलील करने वाले हैं बाद में, बिकॉज रियलिटी ये कि ठीक है टेक इकोसिस्टम बढ़ रहा है, फंडिंग आ रही है, वैलिडेशन आ रही है, दैट्स वेरी हेल्थी for the ecosystem. This is how we move forward. Now we are on that map globally, right? Of emerging markets, hot emerging markets. Actually, Forbes ने एक map निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ. But the game is that if we get these जो आप पहले कह रहे थे ना, few deals that go wrong, right? It spells disaster for all of us, right? And also, I really believe that we need to empower the retail market instead of cutting players out. Right, and what Airlift and PandaMart are doing is very much that. Yeah, right. Because the jump I found very interesting. Yeah. From from okay, all stores can now be a part of us, and I do understand that as well because वो भी है, but वो मुझे नजरिया आ गया कि probably उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो मुझे समझ आया उनके साथ हुआ है कि रेस्टोरेंट का SKU बड़ा छोटा है, बहुत कम, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर का SKU बहुत ज़्यादा है, इनसेन है, और उसकी जो वो है ना कि प्राइस आज विद इन द करंट इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, वो तो बंदा बेचेगा तो बाद में, वो तो बैठ के हर दिन सुबह यही करता रहेगा। बहुत आज जो है ना 250 की लिस्ट में 2 रुपए इसके बढ़ गए, 3 रुपए इसके कम हो गए, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं हो सकता। फूड इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, एंड सो इट डज मेक सेंस कि अगर उन्होंने ग्रोसरी सेगमेंट में आना था तो दे हैड टू बिगिन टू डू इट देमसेल्व्स। बट having said that, I don't know how it's great for that business because what they're able to do is they're going to be, अगर ये successful हो जाता है PandaMart style, they're gonna scale like anything. ऐसा ही है, right? Because उनको अब तो उनको कोई स्टोर फ्रंट चाहिए ही नहीं है, उनको एक्सपेंसिव रियल एस्टेट चाहिए ही नहीं है, उन्होंने लिटरली एक वेयर हाउस से जाके हर किसी को सर्विस करना है। वेयर हाउस भी नहीं होते, इतने बड़े कमरे होते हैं, डार्क स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है, और वहां से वो उठा के लाकर आपको लाके दे रहे हैं। एंड सो दैट आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट क्या वो हमारे इकोसिस्टम के लिए सो, क्योंकि जो लोग फारिग हो रहे हैं, जो दरमियान में हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? वी आर नॉट अ सोसाइटी जो कि इवॉल्व, रीस्केल, अपस्केल बहुत इजीली करती है। एग्जैक्टली। एंड सो हाउ, what happens then? And again, I'm not trying to be cynical, I'm not trying to be negative here. Neither am I. और I think मैं बार बार अपनी पॉडकास्ट में ये वर्ड यूज़ करता हूँ, cautious optimism. रीज़न बीइंग कि यार देखें, जब चीज़ बढ़ रही है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशंस के साथ आप क्वेश्चन ज़रूर रेस करें। Of course. एंड सो उस तर्ज के अंदर मैं चाहूँगा कि आपका मैं समझ सकूँ कि व्हाट्स योर थॉट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज व्हाट आई सी इज दैट यू गाइज आर एसेंशियली सेइंग कि जो प्लेयर मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो 360 डिग्री करता है, हम सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाकर हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें हर चीज़ की एवरीथिंग विल जस्ट बी फार मोर एफिशिएंट। जी, बट वो भी गेम यही है ना जो हम पहले बात कर रहे थे, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नेवर गोना बी इनफ. The margin on those goods, so I'm doing it on the trade end, right? My trade price that I get, I give to the retailer, and there's a margin on that, but that alone does not justify our valuation, our funding either, or our team, or our plans. It's not going to work, right? That does not build a unicorn. Same with Airlift's case, right? Where again, this is my doubt, this is my fear, right? That just the movement of goods alone does not justify the valuation, unless again उनके भी प्रोडक्ट रोड मैप में आपको तो सारे लीक्स आ रहे होते हैं, आपको पता होगा कि वो क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं. For us, look, this space is very interesting. There are 5 venture-backed B2B players, right, all competing for the same pie. However, we're the only ones taking the marketplace bet. So everybody says कि warehouse करो, राइट, कि यही तरीका है कि आप खुद सामान होल्ड करेंगे अपने वेयरहाउस से, अपने ब्रांड से बेचेंगे कि जी मैं दस्तगीर हूँ और ये आपने सामान लिया है मुझसे. दैट्स द ओनली वे. डिस्ट्रीब्यूटर को कट करो, डिस्ट्रीब्यूटर को खाली करो, राइट, होलसेलर को भी खाली करो, राइट, कि आप आ रहे हैं और आप बेसिकली नया बस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर ही बन गए हैं. फिर आप, उस पर कैपेक्स बहुत ज़्यादा है ना, जाहिर है कैपेक्स बहुत ज़्यादा है, ओपेक्स ही बहुत ज़्यादा है. वेयरहाउस, इतने बड़े बड़े वेयरहाउस चलाना, मेंटेन करना, बिजली, मैन पावर इज इनसेन, राइट. हमारा इज बेसिकली, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि इससे अगर आप कंपेयर करें, हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट है, राइट, क्योंकि हम छोटे छोटे सॉर्टिंग सेंटर्स खोलते हैं, वेयरहाउस नहीं करते. जो हम वेयरहाउस करते भी हैं, दैट्स अबाउट 10 to 15% ऑफ ऑल द गुड्स दैट वी सेल. बाकी क्रॉस डॉकिंग है, माल आता ही जैसे ही आया उतनी देर में निकल भी गया,
राइट, स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट इन टाइम तकरीबन पे हम काम कर रहे हैं, राइट, एंड दिस वर्क्स बिकॉज वी नो द डिमांड, वी कैन प्रिडिक्ट दैट डिमांड, राइट, वहाँ पे टेक आती है ना, दैट्स द टेक, दैट्स द पॉइंट, Yeah. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट. ये टेक के यार वो देखो मेरी ऐप से जाके तुमने ऑर्डर चूज कर लिया, ये तो वर्डप्रेस पे बन जाता है कोई यार। सीन नहीं है ना. आप अगर टेक एनेबल्ड प्ले कर रहे हैं तो ये करें ना, कि हम वेयरहाउस का मॉडल निकाल रहे हैं, राइट. दूसरी बात ये, मार्केट प्लेस का फायदा क्या है, एवरीबडी विंस, राइट. रिटेलर को बेस्ट प्राइस मिल रही है, बेस्ट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एंड एवरीबडी इन द इकोसिस्टम, के वो चाहे सब मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, वो अपना अपना माल बेच रहा है, राइट. ये वो वाली बात आपने पहले भी पिक की थी, अगर आपको याद हो, कि इनके भी सेल्स साइकिल्स होते हैं. महीने का एंड है, एक बंदे के पास चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कह रहा है यार लिक्विडेट करो इसको यार, कैश कॉस्ट पे निकाल दो, लगाओ दस्तगीर की ऐप पे लगाओ, ठीक है, कॉस्ट रेट पे लगाओ, देखो क्या होता है, ठीक है. रिटेलर ने फौरन पिक कर लिया, दोनों का फायदा. That's what we want, right? And again, the whole thing will be linked with credit and data and all of this. That's the game. Right. I think essentially what you're doing is एक Walmart मॉडल है. नहीं सर, हम Amazon बनेंगे, ठीक है. मैं हूँ बेजोस, ठीक है, और इतना हमारा उतना ही एम्बिशन है. आपका जो CEO है वो कह रहे बेजोस तो मैं था. सर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हम अपनी स्पेसशिप बनाएंगे. के CEO साहब देखें जरा, ये आपको डी-थ्रोन करके जो है ना बेजोस बन गए हैं. When I say मैं हूँ, I mean Oves Qureshi. हम भी अपना रॉकेट बनाएंगे, ठीक है, और वो रॉकेट हम स्पेस में जाएंगे, क्योंकि यूनिकॉर्न्स जो है स्पेस में रहते हैं. स्पेस में रहते हैं. सैफ भाई, दिस वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल. अभी भी लोगों ने मुझे पता है आके बोलना है कि पार्ट 3 करें, आपने बताया नहीं किया. बट देखें यार, मैं आज एक सेम डे भी शर्ट देखें, मेरी पिछले वाली एपिसोड में भी ये शर्ट थी. वी आर एट द 1 hour mark. We are at the 1 hour mark, and this was very very insightful. I think we're at an exciting time, irrespective of anything else. Definitely. The only reason why this conversation exists is because it's just like an analysis. I would say it's not even a critique. Yeah. To be honest, I mean, I feel like आपने कहा नास्ट स्टेज पे है, तो अभी जो कुछ कर रहा है ना, उसके ऊपर हम सादा सा एक ओपिनियन ही दे सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है नहीं. Yeah. And so I'm just happy that we're at a point where particularly the optimists in us, the ones who worked really hard and who've been homeless and who've done all of those things but believed कि नहीं होगा, वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि सर ये होगा. ऐसा ही है, और कुछ दिखाने को नहीं था. और वो कहते थे कि यार तुम पागल हो, वो जो होते वो सड़क पे फिर रहे होते हैं टाइप के, तो तुम वो हो. लेकिन फाइनली मलंग हो तुम भी, और मलंग हो. And now finally we seem to are beginning to get validated. Yeah. We're beginning to now see कि यार ठीक है, people who believed are beginning to get or reap the rewards of it. अभी we're starting to do that, but definitely with this, अब तो मतलब मेरा confidence तो आसमान पे चला गया है कि 85 million आ जाए तो 3 साल बाद क्या हो रहा होगा वो बहुत ही मजे का होगा. Exactly. अनप्रेसिडेंटेड होगा. Exactly. ऑलरेडी अगर हम जाकर देखें तो हमारे जो फिजिकल लैंडस्केप्स हैं वो चेंज होना शुरू हो गए हैं. आप रोड पे किसी भी आप मेन सिटी में चलें तो आपको फूड पैंडा नजर आता है. दैट वाजंट देयर. या बाइक नजर आता है, या आपको करीम नजर आता है. And that is changing our behavior of how we as a society, how we're living and how we interact with commerce and finance and everything. Absolutely. And so वो जो चीज़ है उससे I just think कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, जो हमने बात की थी. मैंने आपसे लास्ट टाइम सवाल पूछा था कि 2050 का पाकिस्तान कैसा होगा. पूछा था मैंने आपसे सवाल? Not sure. मुझे लगता है मैंने नहीं पूछा था. And so I'm going to ask you this because then everybody says कि why didn't you ask? But सैफ भाई, how do you see Pakistan of 2050? यार आई थिंक हर कोने पे जो है डार्क स्टोर होगा, और दस्तगीर होगा. और रोड पे जो है सिर्फ करीम चल रही होगी, गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी. नो, आई एम किडिंग, राइट. सो टेक में जो हो रहा है, इससे पहले मैं आपकी पिछली बात को एक एड्रेस करना चाहूँगा, छोटा सा जुमला, कि वैलिडेशन आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि funding is not the only validation for the startup ecosystem. Right. Please, funding is not a true representation of economy. Right, ठीक है. फंडिंग में बूम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. You can also have a bootstrap startup. You can also have funding from your family, from your friends, and do it on your own. Use your own nest egg. Validation, true validation, is paying customers and you scaling to even more paying customers. That will always be the core validation point, right? कोई भी अगर इसको भूल जाता है और लोग इस पे फोकस करते हैं कि नहीं हमारा बस पिच डेक बन जाए, सैफ भाई पिच डेक बना दें, यार आप यकीन नहीं करेंगे यार कितने लोग इस पे फोकस्ड हैं कि ये ऑप्टिक्स हमारे ठीक कर दें और ये कर दें. This is not how you win.
So that's just my thoughts on that. बड़ी अच्छी आपने बात बोली. Before you move on to the final question, I just want to ask one more thing. Because I'm sure कि जाहिर है कि जब आप public eye में आते हैं और you know pertaining to the कि आप एक startup system में और cycle के अंदर वो हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये मिलता होगा कि किसी तरीके से ये आइडिया है मेरा, मैं ये आइडिया यूँ करूँगा, यूँ हो जाएगा. मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गया. आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है वो एक मैसिव स्केल $1 million वैल्यूएशन बिलियनियर टाइप होना ज़रूरी है. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नंबर्स हियर एंड देयर गेटिंग थ्रोन अवे. आपने अगर बिजनेस बनाना है, अगर आपकी करियाने की दुकान है जी, ठीक है, और आप उसको स्केल करके 5 करियाने की दुकानें बना रहे हैं और आपका अच्छा घर चल रहा है और अच्छी गाड़ी आ रही है, आप विनर हैं. लाइक you know, it doesn't necessarily, the economy is huge and it requires all components and all वो और ये दरमियान में definitely winners आएंगी. इस तरह की 10, 12, 15, 20 कंपनीज आ जाएंगी जो कि यूनिकॉर्न्स बन जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी. but that doesn't mean कि those are the only ones जो कि इकोनॉमी में रहेंगी. and so बहुत सारे स्मार्ट लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनको देखें, हर बंदा is not capable of achieving this. Of course. ठीक है, it's a lottery scheme, it's a lot of नहीं ऐसा भी नहीं कहें, मेहनत है सर, मेहनत. नहीं देखिए सर, मेहनत हर चीज़ में, मेहनत हर चीज़ में, राइट. वो तो गोज विदाउट सेइंग. लॉटरी स्कीम से मेरा मुराद ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स में 100 प्लेयर घुसेगा, ठीक है, तो उसमें से सक्सेसफुल इट्स लाइक अ हंगर गेम्स एंड उसमें सक्सेसफुल 10% ही होगा जो कि यू नो एज अ कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा. एग्जैक्टली. वो जितना हार्ड वर्क लगा ले, एग्जैक्टली, someone has to rise to the top and eventually the entire thing will gravitate towards that. That's how it works. Consumers हो चाहे इन्वेस्टर्स हो. एंड सो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्टअप करना है तो इट हैज़ टू बी लाइक यू नो यू स्टार्टिंग इट एंड 6 months later the funding is there, a year later you scale to $1 billion. वो बी वेरी वेरी माइंडफुल कि मैं फिर इस राउट में जाना चाहता हूँ तो मैं इस राउट में जाना चाहता हूँ. दिस इज अ हिट और अ मिस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर राउट्स जिसके ऊपर लोग जा सकते हैं और जिसके से लोग पैसा बना सकते हैं. बिकॉज मुझे मैं इससे ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन में आई डोंट वांट कि पॉडकास्ट के ऊपर जब भी मैं ये वाली कॉन्वर्सेशन करूँ तो लोग बैठे डिप्रेस हो रहे होंगे, यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, क्या मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ. यार if you're satisfied with your work, if you're making good money, if you're growing, honestly you don't need to do a startup. If you're growing, if you're learning, if you're learning and if you're growing, मैं इसे कह रहा हूँ if है, बट स्टार्टअप फॉर द स्टेट ऑफ स्टार्टअप नहीं होना कोई चाहिए. सीन नहीं है ना आपको स्टार्टअप में बस जाके नौकरी करनी चाहिए क्योंकि आपको इस ग्रुप में आना है. ना आपको अपना शुरू करना चाहिए क्योंकि आपको इस ग्रुप में आना है. ना आपको इतना अपना कोई फंड करना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, मुझे भी कोई मिल जाए जो मेरा भी नाम फिर अखबार में आ जाएगा, यार मुज़म्मिल यार मेरा नाम. तो इस तरीके से नहीं होता. एक तो पहली बात ये है कि आपको कारोबार करना है तो कारोबार करें. कारोबार के जो फंडामेंटल्स हैं, राइट, जो किराना वाला भी शायद हमसे बेहतर समझता है, वो समझें, उसको स्टडी करें, व्हिच ऑल ऑफ यू आर टेक्निकली डूइंग, राइट. बीबीए हर कोई होता है, तो वो समझें कि हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, राइट. एरिक रीस की किताबें पढ़ें कि लीन स्टार्टअप का मॉडल क्या है, राइट. एंड दैट डज नॉट जस्ट अप्लाई फॉर टेक, राइट. आप वो लीन स्टार्टअप किराने में भी अप्लाई कर सकते हैं. आपको कल चाय का बिजनेस शुरू करना है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट. इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स टेक, वेल एंड गुड, बट द टारगेट, द milestone or the benchmarks are not going to be कि मुझे इस वक्त एंजल राउंड मिले, फिर मुझे सीड राउंड मिले, फिर मेरा नाम फोर्ब्स में आएगा. ये नहीं है. ये चीज़ें अगर हो जाएं, अगर you pull it off, well and good, right? But you have to know your fundamentals. जो बार बार मैं यूनिट इकोनॉमिक्स का ढिंडोरा पीट रहा हूँ, हर जगह जाके, हर महफिल में जाके मैं यही रो रहा होता हूँ, राइट. क्योंकि नहीं है, क्योंकि इस पर फोकस हट चुका है, राइट. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, राइट. कि आप किसके लिए बना रहे हैं, राइट. उससे आपने बात की है, जिसके लिए आप बना रहे हैं, राइट. वो क्या कहता है इस बारे में, वो कहता है अच्छा है, ठीक है, वो पैसे देने के लिए तैयार है इस चीज़ के लिए, पैसे देगा, कितने देगा, ये बात की है. दिस इज अनदर थिंग कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होती है, राइट. इस तरीके से देयर इज अनदर थिंग कि प्राइसिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होती है. यार मतलब यू नो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन. या एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में पैशन हो. द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समवन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, ही हैज अ ब्रांड एंड you know he was like you know I was thinking कि मुझे भी VC के पास जाना चाहिए. यार you know my question mark is, do you even need VC? Yeah. Right? It's a profitable business? It's a profitable business. It's a hugely successful business. क्या सीन है? Why does he need it? तो मैंने कहा यार आराम से अपने तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने उससे इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे हो. Why would you want to go to a VC, right? Like क्योंकि मैंने ये देखा है कि VC आएगा, VC को तो भाई मैसिव स्केल चाहिए. हाँ. VC कहेगा कि यार ये तुमने ब्रांड बनाया हुआ है, चीज़ें बेच रहे हो, अपने ब्रांडेड चीज़ें बेच रहे हो, मार्केट प्लेस बना दो. अब तुमने अपना पूरी जिंदगी लगाई है ब्रांड बनाने में. आज तुम जाओगे सिर्फ उस VC के ख्वाब में अपना पूरा वो चेंज करोगे, ऐसे ही होगा. और तुम्हें उस नई चीज के बारे में 2 रुपया कुछ नहीं पता.
but somehow, or you feel like shit because the VC is telling you, yeah, you have a very shit product. Yeah. Because why? Because yes, in the VC's money's context, it's shit. It's shit, yeah. But it's fine. And so, everybody does not have to do this. This is a particular thing जो कि एक particular crowd के लिए है और एक particular type के लिए Yeah. है. But having said that, Saif bhai, what do you think about Pakistan in 2050? So I think जो टेक रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं ये कोई ब्लिप नहीं है, ये कोई छोटी सी एक फैड नहीं है. दिस इज़ हियर टू स्टे, राइट. एंड जो भी हम बातें आज कर रहे हैं 30 साल बाद हम बैठ के बोल रहे होंगे यार हम कि हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना ये उठने वाला है, राइट. हमें अंदाज़ा, हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे जो हम बैठ के बात कर रहे थे कि ये फिनटेक ही होगा, राइट. दैट नो वन विल बी वॉकिंग अराउंड विदाउट credit scores, without credit products having applied in their lives some way or another, right? Without having completely new and disrupted and redefined value chains in every industry, right? अभी हम B2B का कर रहे हैं, अभी हम B2C का कर रहे हैं, अभी कल को कोई B2B फूड में करेगा. आज अभी कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने, करीम के लड़कों ने शुरू किया काम कि वो एग्रीकल्चर को डायरेक्टली लिंक, मतलब किसान को लिंक कर रहे हैं डायरेक्ट रिटेलर के साथ. उसको क्या आरती को खत्म कर रहे हैं. हाँ, ठीक है. अगेन ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर, राइट. एंड व्हाट यू विल सी इज कि हर जगह कोई ना कोई हर वक्त यार. एक तो कोई पाक एग्री मार्केट है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड द सेकंड वन इज ताज़ा टेक्नोलॉजीज. ताज़ा वाले तो इस्लामाबाद में ना, जो करीम के लड़के हैं. आई बिलीव सो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो देम, बट अगेन इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट, राइट. एंड अगेन वहाँ पे मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कि यूनिट आप बिठा लेंगे, राइट. और स्केल आरती का पैसा मारकर आपने जो है ना सिर्फ, हाँ, आरती का पैसा मार रहे हैं, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट बेनिफिट्स द किसान एंड द रिटेलर अ लॉट मोर. बिकॉज द थिंग इज कि पाकिस्तान में तो ये तो एक इसको तो स्टडी है पूरी की पूरी के आरती इज द वन जो कि कुछ नहीं करे बगैर सबसे ज़्यादा पैसा लेके जा रहा है. 120 का टमाटर उधर पहुंचता है, 8 रुपए का जैसे निकलता है. आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, आप ट्रैक्टर बेहतर कैसे लोगे, आप वो सारा किस तरह लोगे, क्योंकि दरमियान वाला सबसे बड़ा चंक ले रहा है. तो जिस दिन ये चीज़ हो गई तो दिस इज यही गेम है. एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि ताज़ा वाले भी अभी अगली अपॉर्चुनिटी है B2B इन फूड, राइट. फूड और होरेका सब मिला के कितना दूध और शुद्ध, पता नहीं क्या, कितना सामान, कितनी खरीदारी होती है, राइट. ये इम्पोर्टेड चॉकलेट आ रही है, किसी को वो क्रीम चीज़ चाहिए कि make a marketplace, right? The difficult part is that you have to have perfect demand planning, right? You got to get that down to the T, because what cream cheese hard gayi to aapka loss hai, but someone's going to pull that off, right? And we're going to see this. So again, 2050, I imagine everyone, bachcha gali mein app, मतलब मुजम्मिल भाई मेरा ऐप नहीं चल रहा, राइट. कि कौन सा ऐप है वो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, राइट. या तो वो फिनटेक में लगा हुआ है, इसका नहीं कंप्लीटली कनेक्टेड, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड. आई थिंक द साइनो इन्फ्लुएंस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, व्हिच आई थिंक विल बेनिफिट द इकोनॉमी at the very least, right? I can't say what that will look like culturally, but I think what we've seen in other parts of the world as well, economies improve, economies scale. जो हम चाहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो ऐसे ही आएगा. हर बंदे के पास पैसा होगा, हर बंदे के पास स्मार्टफोन होगा, वो डिजिटली कनेक्टेड होगा. स्कूल की जरूरत नहीं है, ठीक है. हाँ, हमारा एजुकेशन शिट है, ठीक है. आप लोग जो कर रहे हैं उसको ठीक करते रहें, जो भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं. एड टेक विल विन, ठीक है. यूट्यूब विल विन, राइट. दीज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे डेमोक्रेटाइज्ड है, एवरीबडी विल हैव एक्सेस टू दीज टूल्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. अभी हम आपकी टीम के साथ, एक मेंबर के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि हाउ डू आई लर्न दीज स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग. आई वाज लाइक, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट नो द राइट वेबसाइट्स टू गो ऑन. यू डोंट नीड टू डू अ डिग्री in this because Pakistan mein hai bhi nahi, right? You don't need to do a workshop or anything. Just watch the certain videos, watch the certain, read the certain books, and you'll be able to build a career in this. And that's what will happen. And I think वो होगा कि ये लोग जो हैं conventional career paths थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, entrepreneurship बढ़ना शुरू हो जाएगी. ये मेरे, of course you can very much hear my bias in all of this as well. But that's also, I think, what I'm most looking forward to, right, is the 5th industrial revolution in Pakistan, जो बाकी हर जगह हो चुकी है, यहाँ नहीं आई अभी तक. चलें, that's exciting image of the future. बड़ी आपने एक खूबसूरत तस्वीर कशी की सैफ भाई. सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शर्फ बख्शा एक दूसरी दफ़ा यहाँ पर आकर. और आप कराची से आए, मैंने कहा थोड़ा सा हम भी उर्दू देखें. क्या बात है यार. But no, honestly, this was a lot of fun, and this was definitely very, very insightful. Same here, man. Thank you. Always a pleasure, talking to you. Thank you for being a part. Thank you, sir.
एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अगर आपको एपिसोड 3 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आप इनकी किसी बात से एग्री करते हैं तो वो भी बताइएगा. डिसएग्री करते हैं तो कैंसिल किए बगैर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या डिसएग्रीमेंट है. इसी के साथ साथ इजी पैसा जैज़ कैश यहाँ पे कहीं पे अपीयर हो रहा है. यू कैन सपोर्ट द चैनल. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. This is the thought that counts. फेसबुक वाले TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके. वहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स के आपको नहीं सॉरी यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.